अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज में कॉन्सर्ट जारी है। आइए आपको भी बराह रास्त लिए चलते हैं। Ladies and gentlemen, it is our honor to present to you the 45th President of the United States, Donald J. Trump, and the First Lady of the United States, Melania Trump. Ladies and gentlemen, it is our honor to present to you the 45th President of the United States, Donald J. Trump, and the First Lady of the United States, Melania Trump. Thank you. Thank you very much. Hello, folks. Our First Lady. Well, we just want to thank everybody. This has been an amazing journey for all of us, not just me and not just Melania. It's been an amazing journey. And now the work begins. We have to get it done, and we'll get it done. There is so much spirit in our country. This is such a great country, and we are going to do things. We will not be taken advantage of anymore, okay? We will not. We're going to have those companies come pouring back in. You see what's been happening over the last 3 weeks. And we're going to have a lot of things happen. And you're going to read about them, and I don't know. Let me ask you, should I keep the Twitter going or not? Keep it going? I think so. I think so. You know, the enemies keep saying, oh, that's terrible. But, you know, it's a way of bypassing dishonest media, right? We go, wow. So, but I just want to thank you. We started out, we weren't given a great chance, but we knew we were going to win. And, you know, it took 2 weeks before we went to #1. Not a long time. And the first week was composed, in terms of the phony polls, was composed of 2 days. So we were at #1, and we stayed there the entire route during the primaries. And then, boy, did I work. Those last 4 weeks, I worked. Oy, ay, ay. That was some job. We did a good job together. And I'll tell you what, many of the people in this room went to those rallies with us, right? They went to those rallies. I saw one person on television tonight, incredible family. Her and her husband, she said, we've gone to 42 Trump rallies. I said, 42? 42? But we did. We had a lot of people that went to a lot of the rallies, and it showed up. And, you know, when we went in, I really felt that last week in particular, I said, how are we going to lose? How can we lose? It's just too much. There has never been a movement like this anywhere in the world. There's never been anything like this. So I am so looking forward. I just left, actually, the Oval Office because
because our great General Mad Dog Mattis was approved tonight. The Senate approved. He was first. And I went to sign, and Mike Pence, who's coming out in a second, signed. You saw what happened, right? He just swore him in. And General Kelly, the border, oh, that border, we're going to have a border again. And he was approved tonight by the Senate. So we're starting to work, and we're going to do a great job. We are not going to let you down. Remember the theme, Make America Great Again, and Make America Great Again. I'll tell you what, I've added, since I got to know so many people in this country, greater than ever before. It will happen. So I want to thank everybody for being with us and for sticking with us. And it's been an amazing experience. And now the fun begins, okay? Now the fun begins. We're going to do a really good job. And I will be fighting every single day for you. Thank you, everybody. Thank you, and have a great time. Thank you. कौन And से now ये the president तमाम and वादे first lady of the पूरे United करूंगा States will और अमेरिकी नौमंतखब सदर का ये कहना था कि हम अमेरिका को दोबारा से अजीम बनाएंगे और उनका ये कहना था कि अमेरिका में रहने वाले लोग पहले से बेहतर होंगे. End is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, for which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, oh, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I beat off more than I could chew, and through it all
decided it my वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज़ में कॉन्सर्ट जारी है। स्टेज पे आते ही उन्होंने उन सब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनका साथ दिया। हम अमेरिका को पहले से बेहतर बनाएंगे, ये कहना था उनका। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये बहुत प्यारा मुल्क है, मैंने जो वादे किए उनको पूरा करने का वक्त आ गया है और मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर वो वादे पूरे करेंगे। खिताब के बाद उन्होंने अपनी बीवी के हमरा रक्स भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें सदर के तौर पर हलफ उठा लिया। अमरीकी चीफ जस्टिस ने माइक पेंस से नायब सदर और डोनाल्ड ट्रंप से सदर के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफबरदारी में हजारों अफराद ने शिरकत की। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश और ट्रंप को सदारती इंतखाबात में टफ टाइम देने वाली हिलरी क्लिंटन भी मौजूद थी। साबिक सदर ओबामा और मिशेल ओबामा भी तकरीब में मौजूद थे। रवायती कौमी धुनों में तकरीब हलफ बर्दारी का आगाज हुआ। अमरीकी चीफ जस्टिस ने माइक पेंस से नायब सदर और डोनाल्ड ट्रंप से सदर के ओहदे का हल्फ लिया। That I will support and defend the Constitution of the United States. The office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. तकरीब में हजारों अफराद ने शिरकत की, जिसमें साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश और ट्रंप को सदारती इंतखाबात में टफ टाइम देने वाली हिलरी क्लिंटन भी मौजूद थीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में कहा है कि हमने अपनी सरहदों को छोड़कर दूसरे मुल्कों की हिफाजत की और अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ छोड़ दिया। ट्रंप ने अमरीकियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी कराई है। सबसे पहले अमरीका का नारा भी लगा दिया। सदर ट्रंप ने साबिक़ अदवार की पॉलिसीज़ पर खूब तनकीद भी की। Time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. ट्रंप ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अवाम की बजाय अपना तहफ़्फ़ुज़ किया और अवाम के लिए कुछ नहीं किया। And the crime and the gangs and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now. अमरीकी सदर ने कहा कि कई दहाइयों से हमने दूसरे मुल्कों की तरक्की की तरफ तवज्जो दी और खुद ज़बू हाल हो गए। Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries. ट्रंप ने कहा कि हमने अपनी सरहदों को छोड़कर दूसरे मुल्कों की हिफाजत की और अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ छोड़ दिया। We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams. ट्रंप ने कहा कि दूसरे मुल्कों की मईशतें तरक्की करती गईं, लेकिन अमरीकी कारखाने एक एक करके बंद होते गए और कई मिलियन अमरीकी शहरी बेरोजगार हो गए। We've made other countries rich, while the wealth, strength, and confidence of our country has dissipated over the horizon. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. ट्रंप ने कहा कि आज इन तमाम बुराइयों के खात्मे का दिन है। All across the world. ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अहकामात जारी करना शुरू भी कर दिया। अमरीकी सदर ने ओबामा केयर के कानून के खिलाफ एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जबकि ऑर्डर के तहत ओबामा केयर के लिए दरकार ज़ाब्तों में कमी की जाएगी।
ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहां पर बताते चले कि ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अहकामात जारी करना शुरू कर दिए हैं और अमेरिकी सदर ने ओबामा केयर के कानून के खिलाफ एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। ऑर्डर के तहत ओबामा केयर के लिए दरकार ज़ाब्तों में कमी की जाएगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अहकामात जारी करना शुरू कर दिए। अमरीकी सदर ने ओबामा केयर के कानून के खिलाफ एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए और ऑर्डर के तहत ओबामा केयर के लिए दरकार ज़ाब्तों में कमी की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 45वें अमरीकी सदर का हल्फ उठाने के बाद अहकामात जारी करना शुरू कर दिए हैं और पहला हुक्मनामा उन्होंने जारी कर दिया। उनके हुक्मनामे के मुताबिक ओबामा केयर से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कमी कर दी गई है। और आपको बताएं कि सेक्रेटरी दिफा जेम्स मैट्स और सेक्रेटरी होमलैंड जॉन केली ने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। नायब सदर माइक पेंस ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी होमलैंड से हल्फ लिया। वजीर दिफा जेम्स मैट्स और वजीर होमलैंड जॉन केली ने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। ब्रेकिंग न्यूज शामिल कर रहे हैं। सेक्रेटरी दिफा जेम्स मैट्स और सेक्रेटरी होमलैंड जॉन केली ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। नायब सदर माइक पेंस ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी होमलैंड से हल्फ लिया, जबकि वजीर दिफा जेम्स मैट्स और वजीर होमलैंड जॉन केली ने ओहदों का हल्फ उठाया। आपको बता रहे हैं कि सेक्रेटरी दिफा जेम्स मैट्स और सेक्रेटरी होमलैंड जॉन केली ने ओहदों का हल्फ उठाया, जबकि माइक पेंस ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी होमलैंड से हल्फ लिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम मुखालिफ जज्बात पहले ही रोज सामने आने लगे हैं। मनसब सदारत संभालते ही मुसलमानों के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी। मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का नारा लगाकर मुसलमानों के साथ सख्ती बरतने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का पहला बयान मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ खुला पैगाम। When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice. तकरीब हलफ बर्दारी के बाद ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा कि हम इस्लामी शिद्दत पसंदाना दहशतगर्दी के खिलाफ मुहज़्ज़ब दुनिया को मुत्तहिद करेंगे। ट्रंप ने कहा कि दुनिया से बुनियाद परस्त इस्लामी दहशतगर्दी का नामो निशान मिटा देंगे। We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism. ट्रंप ने कहा कि तमाम मुमालिक से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करेंगे, मगर साथ ही साथ ये भी कह गए कि नए इत्तेहादी तलाश करेंगे। We will rediscover our loyalty to अमरीकी मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप के 4 साला दौरे सदारत को उनके इस्लाम मुखालिफ रवैये के बायस अपने लिए बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं। बरतानवी अखबार ने अमरीका में मुकीम मुसलमानों की राय पर मुश्तमिल रिपोर्ट शाया कर दी है। आपको बताएं, जिसमें पूछा गया था कि वो ट्रंप के दौर को कैसे देखते हैं। रिपोर्ट में अक्सरियत ने राय दी कि नए अमरीकी सदर का इस्लाम मुखालिफ रवैया एक बड़ा चैलेंज होगा। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाकयात में इजाफा हो सकता है, ताहम मस्बत पहलू अमरीका में पाई जाने वाली मजहबी आज़ादी है जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। बाज़ की राय ये थी कि अमरीका में बसने वालों के लिए उनके मुआशी मफादात अहम हैं और अगर मईशत की सूरत हाल में बेहतरी आती है तो ये सब के लिए अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 45वें सदर बन गए। अमरीका को अजीम मुल्क बनाने का अज़्म स्याह भूरे या सफ़ेद रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब में हुब्बुल वतनी का खून दौड़ रहा है। Gentlemen, the President-elect of the United States, Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर बन गए। हल्फ उठाने के बाद शुरका से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, एक इंतजामिया जा रही है, दूसरी आ रही है, ताकत अवाम को मुंतकिल की जा रही है। Today, we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people.
ट्रंप ने कहा कि अपनी मदद आपके तहत अपने मुल्क की तामीरें नौ करेंगे, अमेरिका को अजीम मुल्क बनाएंगे। So to all Americans in every city, near and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these words. You will never be ignored again. ट्रंप ने कहा कि नौकरियों का दिफा करेंगे, इमिग्रेशन, टैक्स, तिजारत, खारजा अमूर को अमरीकियों के लिए फायदेमंद बनाएंगे। We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. खिताब के इख्तितामी अल्फाज में ट्रंप ने सबसे पहले अमेरिका का नारा फिर से लगा दिया। Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you. God. और डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले उनके मुखालिफिन ने अमेरिका भर में हंगामा मचा दिया। तोड़ फोड़ करते मुजाहिरीन ने गो ट्रंप गो के नारे लगा दिए, जबकि पुलिस ने ताकत के इस्तेमाल से मुजाहिरीन पर काबू पाया। एहतजाज करते मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक जानिब ट्रंप को वेलकम कहने वाले अमरीकी तो दूसरी जानिब ट्रंप मुखालिफिन का शदीद एहतजाज। तकरीब हल्फबर्दारी से कबल ट्रंप मुखालिफिन की व्हाइट हाउस के करीबी इलाकों में तोड़ फोड़, गाड़ियों, इमारतों के शीशे तोड़े, जबकि सड़कों पर लगे कचरे के ड्रम्स और दीगर सामान भी फेंक दिया। गो ट्रंप गो के नारे लगाते मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर के मवाक़से का मुतालबा भी किया। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की दीगर रियासतों में भी ट्रंप मुखालिफिन सरापा एहतजाज बने रहे। आपको बताएं, रूस ने अमेरिका पर फिर बाजी मार ली। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर के हलफ उठाने के साथ ही अमेरिका में होने वाली आतिशबाजी को भी रूस ने हैक कर लिया। वॉशिंगटन में होने वाली आतिशबाजी में आसमान पर साफ साफ यूएसए की जगह यूएसआर लिखा नजर आया। आतिशबाजी की सरकारी तकरीब के दौरान आतिशबाजी को भी हैक करने के अनोखे वाक़े पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। रूस पर पहले ही अमेरिकी इंतखाबात के नताइज हैक करने के इल्जामात आयद किए गए हैं। आपको बताएं कि रूस ने फिर अमेरिका पर बाजी मार ली। सदारती हल्फबर्दारी के बाद आतिशबाजी भी रूस ने हैक कर ली। आतिशबाजी के दौरान यूएसए की जगह यूएसआर नजर आने लगा। आतिशबाजी की हैकिंग पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। अमेरिकी नताइज को हैक करने का इल्जाम भी रूस पर आयद है। अमरीकी सदर और खातून अव्वल के सरकारी ट्विटर अकाउंट्स भी डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को मुंतकिल कर दिए गए हैं। अमरीकी सदर और खातून अव्वल के ट्विटर अकाउंट्स जो कि ओबामा और मिशेल ओबामा इस्तेमाल कर रही थी और उनकी तस्वीर भी लगी थी, अब इख्तियारात की मुंतकली के बाद दीगर चीज़ों के साथ साथ ट्विटर अकाउंट्स भी डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने अपनी तस्वीर लगा दी हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा के 8 साल दौरे सदारत का आखिरी दिन 20 जनवरी रहा। बराक ओबामा अमेरिका में सदारत के ओहदे पर फाइज होने वाले पहले सियाफाम अमरीकी थे। उनका कहना है कि व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद उनका रोजमर्रा के सियासी मामलात में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बतौर नए अमरीकी सदर हल्फ उठाने के बाद साबिक सदर ओबामा अपने अहल खाना के हमरा छुट्टियां मनाने के लिए कैलिफोर्निया चले जाएंगे। ओबामा के 8 साल दौर के चंद यादगार लम्हात पर डालते हैं एक नजर। यादें रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें। जहां में बेटा मेरा ही खराब, वो दिल में सोचना करके कुछ दिखा दे, वो करना प्लानिंग रोज नई यार, लड़कपन का वो पहला प्यार, वो लिखना हाथों पे A+R।
और आपको बताएंगे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुखालिफिन पर तनकीद करने के लिए झूठ का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर बयानात के साथ ट्रंप जिन खबरों का हवाला देते थे वो सच पर मबनी नहीं होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने सियासी मुखालिफिन, ओबामा इंतजामिया और दीगर डेमोक्रेट्स की कानूनी हैसियत और वफादारी पर झूठे दावे करके तनकीद करते रहे। ट्रंप के सोशल मीडिया की एक्टिवेटर्स का कहना है कि तज्जिया करने वाले माहिरीन कहते हैं कि ट्रंप अपने बयानात के साथ ऐसी खबरों का हवाला देते जिनकी रिपोर्टिंग सच पर मबनी नहीं होती थी और सोशल मीडिया पर जारी की जाने वाली वीडियो को भी रद्दोबदल करके पेश किया जाता था। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर सैयदा आबदा हुसैन का कहना है कि पाकिस्तान को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। वो सियासतदान नहीं, बिजनेसमैन हैं। उन्हें अपना फायदा नजर आए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं। लाहौर से अली वक्कार सिंधु की ये रिपोर्ट। ऐवान सनत और तिजारत में नए अमरीकी सदर की पॉलिसियों के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए अमरीका में पाकिस्तान की साबिक सफीर सैयदा आबदा हुसैन का कहना था कि हमें अमरीका से माली इमदाद की तवक्का नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरफ रागिब करना चाहिए। पाकिस्तान में क्योंकि दहशतगर्दी बहुत कम हो गई है तो हमें अमेरिका से इन्वेस्टमेंट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे यहाँ पे आके प्रोजेक्ट्स बनाएं। साबिक सफीर ने पाकिस्तान और भारत से मुतल्लिक अमरीका की पॉलिसियों पर कहा कि नौमुंतखब अमरीकी सदर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम कराने में किरदार अदा कर सकते हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म की शख्सियत है कि अगर उसके जहन में आ गया कि इसमें उसका नाम बनेगा तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबैन सालसी का किरदार भी अदा कर सकता है। सैयदा आबदा हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान के अमेरिका में मुतवक्का नए सफीर एजाज चौधरी तजर्बाकार तो हैं लेकिन शख्सियत के एतबार से कमजोर हैं। सेमिनार में सीनियर सहाफी सुलेमान गनी ने भी पाक अमेरिका ताल्लुकात पर रोशनी डाली। कैमरामैन अली रजा शाह के साथ अली वकार सिंधु, न्यू न्यूज लाहौर। उधर अमरीकी टेलीविजन प्रोग्राम के मेजबान ने डोनाल्ड ट्रंप को नफरत का शिकार और मजलूम करार दे दिया। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ के एक प्रोग्राम में मेजबान ने अपने प्रोग्राम टॉकिंग पॉइंट मेमो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नफरत का शिकार हुए हैं, वो ट्रंप को मजलूम समझते हैं। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात है कि ट्रंप तकरीब हलफ बर्दारी में जो भी कहे उन्हें नापसंद करने वाले लोग उनकी बातें तस्लीम ही नहीं करेंगे। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। कराची कोरंगी के इलाके जमान टाउन में पुलिस मुकाबला हुआ। एसपी लांधी आरिफ राव के मुताबिक मुकाबले के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार जबकि उनके कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। उधर बल्दिया टाउन मदीना कॉलोनी में कार्रवाई हुई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इब्राहिम हैदरी में बच्ची से ज्यादती, 3 मुल्जिमान जेर हिरासत। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिमान का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहां पर बताएंगे कराची कोरंगी के इलाके जमान टाउन में पुलिस मुकाबला हुआ है। एसपी लांडी आरिफ राव के मुताबिक मुकाबले के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, असलहा भी बरामद किया गया है। बल्दिया टाउन मदीना कॉलोनी में कार्रवाई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इब्राहिम हैदरी में बच्ची से ज्यादती, 3 मुल्जिमान जेर हिरासत। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिमान का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है और अब सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। मुल्क में लोड शेडिंग का मसला भी कम रह गया है जबकि दहशतगर्दी का खात्मा भी हो गया है। रेवॉस इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमारी स्टॉक मार्केट एशिया में नंबर 1 और दुनिया में 5वें नंबर पर है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है जिसकी वजह से रवां साल तरक्की की रफ्तार 5.5 से बढ़ जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करेंगे। अमरीकी सफारत खाना तेल अबीब से मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल कराने के लिए मकबूजा बैतुल मक़दस के मेयर ने नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाना शुरू कर दिया। कहा कि सुबकदोश होने वाले सदर ओबामा ने तो इसराइल को बेच दिया था, मगर सदर ट्रंप हमारे दोस्त हैं।
दूसरी जानिब सैकड़ों फ़लस्तीनियों का डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ धरना दिया गया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में मेयर नेर बरकत का कहना है कि गुज़िश्ता 8 सालों में अमरीकी सदर ओबामा ने यहूदी आबादकारी को रुकवाया और इस्लाम के इंतहा पसंदों और ईरान के आगे हथियार डाल दिए और इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ज़रिए यरगमाल बना दिया। लेकिन अब नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, वो हमारे दोस्त हैं। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा को अपना दिफा समझता है। पाक फौज हर सूरत में हरमैनुल शरीफैन का दिफा करेगी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का हमेशा तहफ़्फ़ुज़ करेगा, सिपा सलार का वाशगाफ ऐलान। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी सफीर अब्दुल्ला मरजूक की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी, दिफाई और तरबियती ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज सऊदी अरब के दिफा को अपना दिफा समझती है और पाकिस्तान हर सूरत हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर ताउन के हवाले से भी बातचीत की गई। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जहां पे भारत की रियासती दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच गई है। काबिज फौज ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जारी। नमाज जुमा की अदायगी के बाद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को श्रीनगर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। हुर्रियत रहनुमाओं ने यासीन मलिक को गिरफ्तार करने पर मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी है। श्रीनगर, बडगाम, बांडीपुरा, पुलवामा और शोपियां समेत कई इलाकों में आजादी के मतवाले सड़कों पर निकल आए, आजादी के नारे लगाए और पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। और अब कुछ पनामा का हंगामा हो जाए। पनामा केस में जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए। तौफीक आसिफ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को इतराफ़ जुर्म माना जाए। दलाइल पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इतराफ़ जुर्म ही काफ़ी नहीं, ठोस शवाहिद दरकार होंगे। अदालत के बाहर अमीर जमात इस्लामी ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए। तौफीक आसिफ ने बेंच के रूबरू कहा कि वजीर आजम की तकरीर एतराफ़ जुर्म है। नवाज शरीफ असासे छुपा कर नाअहल हो गए। उनकी तकरीर पर आर्टिकल 66 का इतलाक नहीं होता। जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। बेंच के सरबरा ने ये वजाहत भी की कि वज़ीर आज़म ने इस्तिस्ना नहीं मांगा। आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना और 66 के तहत इस्तेहकाक दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हुजूर, ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। समाअत खत्म होने पर मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पनामा केस का फैसला मुल्क से करप्शन के खात्मे का फैसला करेगा। ये जो हमारा केस है सुप्रीम कोर्ट में, ये फर्द के खिलाफ नहीं है, करप्शन के खिलाफ है। ये जातियात का कोई मसला नहीं है, इस मुल्क को क्लीन और खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए है। पनामा केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। अगली समाअत में जमात इस्लामी के वकील अपने दलाइल जारी रखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने बेनजीर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके बहरीन जाने वाली परवाज का मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया। मुसाफिर के सामान से 1 किलो 100 ग्राम आला क्वालिटी की हेरोइन बरामद कर ली। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने बेनजीर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके बहरीन जाने वाली परवाज का मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया। और आपको बताएं कि मुसाफिर के सामान से 1 किलो 100 ग्राम आला क्वालिटी की हेरोइन भी बरामद हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमान मकसूद से। जी नुमान मकसूद, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने और बहरीन जाने वाली परवाज थी 771। उसका मुसाफिर है मुदस्सिर, नाम इसका बताया जा रहा है। और ये मुसाफिर जो है वो इसका सामान जो है वो ASF का कहना है कि मशकूक नजर आया, जिस पर इसके सामान की तलाशी दी गई तो इसके सामान से आला क्वालिटी की हेरोइन जो है वो बरामद की गई है। हेरोइन का वजन जो है वो 1 किलो 700 ग्राम जो है वो बताया जा रहा है। ASF का ये कहना है कि इस
हेरोइन की जो आलमी मार्केट में कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है। और हेरोइन का जो गिरफ्तार किया गया है स्मगलर, इसका ताल्लुक जो है वो चिन्नौर से बताया गया है। ASF का कहना है कि मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए इंसदाद मंशियात फोर्स के हवाले कर दिया गया है। ठीक है, नुमान मकसूद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिनका कहना है कि पनामा केस से वज़ीर-ए-आज़म को किसी तरफ भागने नहीं देंगे। हुक्मरान जानते हैं कि ओपोजिशन का कानून पास कर लिया तो नहीं बचेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत फैसलाबाद में CEC का इजलास। पार्टी चेयरमैन ने पनामा स्कैंडल को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल करार दे दिया। हाँ, करप्शन सबसे बड़ा इशू भी है और पनामा स्कैंडल मुल्क में सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल था। इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पनामा शरीफ फैमिली मुल्क के साथ गेम खेल रही है, हुक्मरानों को करप्शन स्कैंडल से भागने नहीं देंगे। गेम खेल रहे हैं इस मुल्क के साथ, गेम खेल रहे हैं इस मुल्क के साथ। नवाज शरीफ साहब भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसको भागने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ने खुद को नाबालिग और कम उम्र कहने वाले मुखालिफों को भी खरी खरी सुनाई। कहा खून में सियासत और क़यादत कूट कूट कर भरी है। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी पूरी कुव्वत के साथ आइंदा इलेक्शन में उभर कर मैदान में आएगी। सब देखेंगे कि गरीबों के लिए भी कोई पार्टी है। मजीद खबरें शामिल करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की साबिक डायरेक्टर ऑपरेशंस आयशा मुमताज़ अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात का जवाब देने मैदान में उतर आई। उनका कहना है कि पूरी टीम के साथ नाकिस खुराक बेचने वाले माफिया के खिलाफ जंग लड़ी, हर प्लेटफॉर्म पर इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। ताहम पंजाब फूड अथॉरिटी की साबिक डायरेक्टर ऑपरेशंस के खिलाफ बाअसर माफिया सरगर्म है और आयशा मुमताज़ को मुबैना करप्शन के इल्जामात पर गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। लाहौर से रुबा रिज की रिपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ आयशा मुमताज को हरासा करना है। पंजाब फूड अथॉरिटी साबिक डायरेक्टर ऑपरेशंस आयशा मुमताज ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मेरा दामन बिल्कुल साफ है और मैं हर प्लेटफॉर्म पे, हर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी गवर्नमेंट मुझे बुलाएगी, आई विल गो देयर एंड आई विल प्लीड माय केस। न्यू न्यूज को मौसूल होने वाले पैगाम में आयशा मुमताज का कहना है कि वो मिलावट, माफिया और इल्जामात लगाने वालों से डरने वाली नहीं, डटकर मुकाबला करने का भी ऐलान कर डाला। हर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी गवर्नमेंट मुझे बुलाएगी, आई विल गो देयर एंड आई विल प्लीड माय केस, क्योंकि हमारा काम नेक नियति में मबनी है और अल्लाह ताला जो है इसमें इंशाअल्लाह ताला हमें सुरखरू करे। अपनी टीम पर लगाने वाले इल्जामात पर आयशा मुमताज का कहना था कि ये मिलावट माफिया की जानिब से हरासा करने का हथकंडा है, वो ऐसी धमकियों में नहीं आएंगी। उनको ये पैगाम देना चाहूंगी कि आयशा मुमताज ना पहले डरी थी, ना अब डरी है और ना आइंदा कभी डरेगी। पंजाब फूड अथॉरिटी में दबंग अफसर करार दी जाने वाली डायरेक्टर आयशा मुमताज आजकल इल्जामात की जद में है। आयशा मुमताज के ड्राइवर और टीम के एक मेंबर को बदअनवानी के इल्जामात पर महकमा एंटी करप्शन ने हिरासत में ले रखा। बारिश और बर्फबारी का एक और सिलसिला जाड़े की धूम बढ़ाने को तैयार है। आइंदा हफ्ते पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। कराची में मौसम अबरालूद रहने के साथ साथ तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शुमाली बलोचिस्तान में बारिश के साथ शदीद बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी है। कराची समेत दिन भर में दोबारा बारिशों का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब बलोचिस्तान में हालिया बर्फबारी और बारिश से सूबे में तवील खुश्क साली का खात्मा हो गया। इस बारिश और बर्फबारी के अच्छे असरात फसलों और बागात पर मुरतब होंगे तो ज़ेरे ज़मीन तेज़ी से गिरती पानी की सतह को भी सहारा मिलेगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके पिछले 6 माह से खुश्क साली की लपेट में थे। सूबे के 8 अजला से लोगों की नकल मकानी शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश और बर्फबारी ने सूबे के बेशतर इलाकों में जहाँ तवील खुश्क साली का खात्मा किया, वहाँ इस बारान रहमत से ज़मींदारों के दिल भी खिल उठे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में इनकलाब न्यूज़ ला रहा है। बासलाहियत पाकिस्तानियों के लिए तारीखी मौका। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला बिजनेस रियलिटी शो, आइडिया करोड़ों का। लोगों की पुरवकार तकरीब रोनुमाई जगमगाते सितारों से मजीद रोशन हो गई। मारूफ गुलकार आतिफ असलम की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 दिन लगा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली वकार सिंधु। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में मुनक्किदा रंगारंग तकरीब में चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने
सुपीरियर यूनिवर्सिटी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स में कीमती गाड़ियां और नकद इनामात तकसीम किए। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन SM इमरान ने चौधरी अब्दुर्रहमान के हमरा DG प्लानिंग एंड डेवलपमेंट साहिबजादा समीउल्लाह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और लैंड क्रूजर जीप से नवाजा। अब्दुर्रहमान साहब का नाम इसलिए देना चाहूँगा कि एक लीडरशिप ऐसे दी, एक गुरु ऐसा दे दिया मुझे कि जिन्होंने मुझे मेरे लाइफ के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने में मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो मदद की। तकरीब में पाकिस्तानियों की आवाज न्यू न्यूज को बंद करने के चेयरमैन पैमरा के गैर कानूनी और आमिराना इक़दाम के खिलाफ और आज़ादी सहाफत के लिए आवाज बुलंद करने वाले सहाफती तंजीमों के रहनुमाओं और न्यू न्यूज के तमाम ब्यूरो चीफ्स की काविशों को सराहते हुए अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर मियां आमिर महमूद का कहना था कि प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान तालीम और मीडिया के जरिए मुल्क व कौम की जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। चौधरी साहब जो काम कर रहे हैं तालीम में भी मीडिया में भी, यही एक कौम की खिदमत है और मैं समझता हूँ यही रास्ता है हमारी कौम का, हमारे मुल्क का आगे बढ़ने का और आगे जाने का। और जिस तरह ये सब सहाफ़ियों ने जंग लड़ी है नियो की बंदिश के ख़िलाफ़, इनकी भी जितनी हम तारीफ़ करें, जितना इनको अप्रिशिएट करें वो कम है। बाद अज़ान न्यू न्यूज पर जल्द ही जलवागर होने वाले पाकिस्तान के सबसे पहले और बड़े बिजनेस रियलिटी शो आइडिया करोड़ों का के लोगों की भी रुनुमाई की गई, जिससे सीनियर सहाफियों, सनतकारों, सरमायादारों और दीगर शोबाजात से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात ने मीडिया इंडस्ट्री में इनकलाब करार दिया। आज का दिन तारीख में याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जमा हुए हैं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बनाने के लिए, क्योंकि दुनिया में वो कौमें तरक्की करती हैं जहाँ पर इनोवेशन और क्रिएटिविटी फ़रोग पाती है, जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप फ़रोग पाती है। इंशाल्लाह हमारा कल बहुत खूबसूरत होगा, हमारा पाकिस्तान सदा रहेगा, तरक्की करेगा और एक दिन वन ऑफ द बेस्ट नेशन होगा। तकरीब के इख्तिताम पर मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल मोह लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर ने तीसरे मैच में शिकस्त की जिम्मेदारी जुनैद खान पर डाल दी है। कहते हैं कि सीरीज में कामयाबी के लिए मामूली गलतियों की भी गुंजाइश नहीं है। दूसरी जानिब मिकी आर्थर ने अजहर अली की वापसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे वनडे मैच में वापसी के लिए तैयार हैं। जुनैद खान की गलती पूरी टीम पर भारी पड़ गई। कौमी टीम के हेड कोच मिकी आर्थर का कहना है कि सीरीज में जीतना है तो मामूली गलतियों की भी कोई गुंजाइश नहीं। Every little opportunity we have, we've got to be taking to compete with Australia in these conditions. तीसरे वनडे में गलती करते हुए फास्ट बॉलर जुनैद खान ने हैंडिस कॉम को दोबारा जिंदगी देकर उनकी निस्फ सेंचुरी बनाने में अहम किरदार अदा किया था। हेड कोच का कहना था कि खिलाड़ियों पर वाज़ेह किया है कि जीत के लिए तमाम छोटी मोटी खामियों पर काबू पाना है। दूसरी जानिब कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ज़मामुल हक का कहना है कि इंटरनेशनल टीमों के मुकाबले में कौमी खिलाड़ियों की फिटनेस का मेयार कम है। वक्त के साथ साथ फिटनेस में दीगर मामलात बेहतर हो जाएंगे। अजहर अली ही वनडे टीम के कप्तान हैं। प्लेयर को प्रॉपर खेलने का मौका दिया गया है। किसी भी प्लेयर के साथ ऐसा हमने कोशिश नहीं की, गलती हो सकती है, लेकिन हमारी ये है कि जी किसी भी प्लेयर को लेके आए हैं उसको प्रॉपर चांस दिया जाए, पूरा मौका दिया जाए। अजहर अली कप्तान है और हफीज़ इसलिए कप्तानी कर रहा है कि जी अजहर अली फिट नहीं है। अगर इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि जी अजहर अली फिट हो जाए तो वही कप्तान है टीम का, तो वही लीड करेगा टीम को, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। लाहौर में मारूफ मुसव्विर असगर अली के फनपारों पर मुश्तमिल कैलीग्राफी की नुमाइश मुकामी आर्ट गैलरी में मुनाकिद की गई, जिसे शहरियों की बड़ी तादाद ने देखा। तफसीलात शकील जाहिद की इस रिपोर्ट में।
कैनवस पर रंगों से खुदा के नामों और कुरान पाक की मुकद्दस आयात को लिखने का फन कैलीग्राफी की सूरत में मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन में नजर आता है। इस हवाले से लाहौर में मुनक्किद की जाने वाली नुमाइश को खवातीन और मर्द हज़रात ने पूरे ज़ौक़ व शौक से देखा और मुसव्विर असगर अली के फन को दाद दिए बगैर न रह सके। बहुत अमेजिंग है ये सारी पेंटिंग्स और बहुत अच्छे कलर्स हैं, कैनवस के ऊपर काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। कलर्स जो यूज़ किए हैं वो तो खूबसूरत है ही, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से कॉम्पोजिशन हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग देमसेल्फ। इस मौके पर असगर अली का कहना था कि उनके फनपारों की नुमाइश का मकसद अपने इस काम को मजीद आगे बढ़ाना है। मकसद तो यही होता है कि जो हम काम करते हैं ये लोगों के घरों तक पहुँचे, ठीक है, और मेरा तो ये मकसद होता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो लोगों की समझ में आए। इजाज़ आर्ट गैलरी में आवेज़ा किए गए फनपारे शुरका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों और कुरान मजीद के आयात को खूबसूरत अंदाज में लिखना कदीमी फ़न है। यही वजह है कि आर्टिस्ट आज भी इस फ़न को खूबसूरत बनाने के लिए नुमाइश का इनेकाद करते हैं। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ शकील जाहिद, न्यू न्यूज़ लाहौर। न्यू न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।